अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है आपके? Walaikum salam, Asad. I'm great. How are you? आई एम परफेक्टली फाइन। क्या चल रहा है? कोई वीकेंड के प्लान्स? एनीथिंग? Yes, I do have few plans, but it is a Mission Bazaar going on, so I probably attend that after this quick session. Nice, nice, cool. So, Nida, before we like dive into the conversation formally, I would love to hear about you. Like, could you please introduce yourself to the audience? Your journey, like, how did you get into the design? What was the inspiration? Yeah, probably. What were the moments that you that was the kicking moment of your life that okay, now I need to pursue the design as a career. So, over to you. Okay. Okay, so Asad, it will probably take some time of yours because I'm going too deep into the introduction because Mhm. I believe that this story is very much known by the interviewers and they know that what is my journey. But officially, for the world, I'll tell over here that when I was in my teens, I used to make fonts on a paper with a pencil. And one day I went to my father and asked him that, what is this typical thing? Mhm. So he was like, this is something called typography. And I asked him, okay, ये चीज जाके कहाँ लिंक होती है बिकॉज फ्रॉम डे वन व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग स्टेबल्ड और मुझे थोड़ा चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ आपको पता है जब आप अपने सेकेंडरी एजुकेशन में जाते हो तो आपको Mhm. थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आने लग जाती हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है इन लाइफ विच शुड जस्ट ब्लो माइंड्स Mhm. for myself as well and for my parents as well they should feel proud of me Mhm. so the first goal was to make them proud do something for them तो वो इंटरकनेक्ट हो गया इस चीज से तो आई हैड दैट सेल्फ अवेयरनेस यू कैन कॉल दैट आई हैव टू डू समथिंग सो मैं शुरू से आई यूज्ड टू फाइंड आउट थिंग्स फॉर माई सेल्फ सो मैं उनके पास गई उन्होंने कहा दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टाइपोग्राफी एंड आई वाज लाइक ओके फाइन देन आई आस्क्ड हिम वेयर दिस थिंग लिंक्स ही सेड यू कैन डू ग्राफिक डिजाइनिंग सो आई वाज लाइक ओके ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे थोड़ा आर्ट्स का भी शौक था मेरे थोड़े से जो क्रिएटिव प्रोसेसेस थे वो उन दिनों डेवलप भी होना शुरू हो गए थे बचपन से कि अच्छा अगर मुझे अपना रूम सेट करना है तो इस तरह से सेट कर लेती हूँ मैं सारा चीज़ें so but again I had that self awareness I went to my university first I went to my college I picked arts then I went to my university I picked graphic designing luckily मेरा admission हो गया which was very difficult I started graphic designing from PUCAT Mhm. so बहुत limited seats होती हैं जिनको पता है वहाँ पे so then I got into my college and in PUCAT everything was like what I dreamt of it was there ठीक है बट वन थिंग वाज मिसिंग व्हिच वाज कि कोर डिजाइन जो होती है ना जो मार्केट एक्सपीरियंस है और जो मार्केट में एक्चुअली जो चीजें हो रही हैं ठीक है Mhm. वो चीज वाज मिसिंग एंड इट वाज एक्चुअली मिसिंग इन एवरी आर्ट्स कॉलेज सो कमिंग बैक टू माई जर्नी मैंने वो चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस की मैंने डिज़ाइन पढ़ा फ्रॉम इट्स कोर पढ़ा फिर उसके बाद जब मैंने इन 2019 माई डिग्री स्टार्टेड एंड 2020 में कोविड आ गया then everything went online ठीक है and I was sitting free all day even the teachers and everything was was very much jumbled up और कोई चीजें ट्रैक पे नहीं हो रही थी so I was like I have a lot of free time and I cannot sit alone just sitting there and using phone every day so I was like because I had that thing कि मुझे कुछ करना है in life तो वो जो चीज थी ना it just kept pushing me every single time so in my second semester I started an internship so even COVID gave me that time and opportunity that I could focus on my skills. In my second semester, I started my internship. That intern, it was a very small, so not a software house, but a very conventional state culture company थी वो और वहाँ से Mhm. मैंने अपनी internship start की. My collaboration, my interests with my boss were very good. She was very happy with me, and मैंने अपने skill set से ज़्यादा ही उनको perform करके दिखाया. तो then my internship turned into the full time job. Mhm. फिर university again started on-site university. Then I went to my university. I left that job. After a few months, again the lockdown happened, and I was like, "What is happening?" ठीक है, मैंने university के लिए job छोड़ी और फिर lockdown हो गया. My Mhm. boss called me again. She said, "Nida, come back to the office. We need you." And Mhm. I was like, okay, because I was literally at that point of time, I did had that awareness that UX UI design is something I want to do. ठीक है, Mhm. because I was a university student and I was like, मुझे तो ये खुशी हो रही थी कि मेरी बॉस मुझे वापस बुला रही है, तो Yeah. मैं उसी फेज में थी. तो फिर उसके बाद मैं वापस उधर गया. आई वाज प्रीटी मच डूइंग एवरीथिंग फॉर देम. जब आप हर चीज किसी के लिए करते हो ना तो वो बंदा आपको कभी भी जाने नहीं देता. आई वाज डूइंग मार्केटिंग, आई वाज डूइंग सोशल मीडिया हैंडलिंग, आई वाज रिप्लाइंग टू clients, I was doing design because that was my base. I Mhm. was doing design and everything that is related to marketing and graphic designing I was doing for them. Even I was doing collaborations and MOUs with banks as well because they used to own a restaurant. It was Club 313 and I was doing meetings and MOUs with the banks as well. Mhm.
So like I pretty much that was a very good experience for me because I was pretty much doing everything और मुझे हर चीज का पता लग रहा था at that point of time. ऐसी opportunities आपको first time में नहीं मिलती. Hmm. बेशक वो एक small scale company थी, yet they had given me the platform to, you know, they have trusted on me. They given me that platform that okay, Rita, you can go play and try everything around there. Hmm. So after my actions over there, everything was good, worked well. Then again, university started. I then again left the company और फिर मैंने एक software house finally join किया, जहाँ पे मुझे as a UX UI designer काम करने का मौका मिला. Then I, you know, realized that this is something which I want to do in actual. That I want to do design, arts, creative thing, but I want to do something which is again problem solving for the user. I want to design. मुझे एक craze था कि मुझे ना applications design करनी है, mobile applications. मुझे ये वाला एक craze था. So then I realized, okay, from this path I can, you know, start my journey on this. But my first time अपने software house में गई, then I started designing applications, web apps. From there, my product design or sorry UX UI design journey started. So yeah, this was my whole journey. परफेक्ट. इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि आई फेल्ट लाइक के वो लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. पहली तो ये चीज़ कि लाइक व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स उनको टाइपोग्राफी का शायद उस तरह से ना पता हो, शायद उन्हें ग्राफिक डिज़ाइन या इस तरह की चीज़ें उन्हें पता हो, बट द मोमेंट यू एक्चुअली वेंट टू योर फादर एंड ही टोल्ड यू के दिस इज़ टाइपोग्राफी, सो लाइक उनका कोई डिज़ाइन का बैकग्राउंड था या डिड ही हैव द टेक्निकल नॉलेज एंड ऑल? No, he didn't had design background. He was in marketing. So हाँ. someone who is in marketing ना उनको फिर कहीं ना कहीं से ये चीज पता होती है. So he was very much well aware with graphic design because marketing में वो चीज बहुत ज्यादा काम आती है. Yeah. So he was, you know, well aware with typography or fonts as well. So yeah. नाइस नाइस. सो फिर तो ठीक है, फिर तो लाइक यू हैड दैट बेस नॉलेज ऑलरेडी इन योर Exactly. इनहेरिटेंस, या फिर ठीक है, मेक सेंस. लाइक यू ऑलरेडी हैड एट लेवल जीरो, यू ऑलरेडी हैड दैट यूनिवर्स जिसमें से आपको लाइक एक रास्ता निकालना था टू एक्चुअली फॉलो Exactly. योर ड्रीम्स. Exactly. मेक सेंस. कूल. इसी में एक और लाइक आपने एक चीज़ मेंशन की है और वो ये कि लाइक यू एक्चुअली वांटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन परस्पेक्टिव एंड देन यू मूव टू द यूआई यूएक्स साइड या यूएक्स यूआई साइड. Like back in the day when we went to an event, front matter का event था, खुशनुद कादर was giving his talk. उन्होंने exactly यही बात की थी कि in the market ग्राफिक डिज़ाइन को लोग शायद उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं समझते, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस के 1 या 2 साल के बाद एवरी ग्राफिक या क्रिएटिव डिज़ाइनर स्विच टू द यूआई यूएक्स साइड बिकॉज दे थिंक के इम्पैक्ट उस तरह से होता नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन का when it comes to as compared to like UI UX या प्रोडक्ट साइड. तो आपको नहीं लगता कि लाइक ग्राफिक डिज़ाइन वाली साइड भी, सिंस मुझे अवेयरनेस नहीं थी राइट, और मेरा तो खैर एक डेलिबरेट डिसीजन था कि मुझे लाइक स्विच क्यों करना है फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन टू एक्चुअली द प्रोडक्ट डिज़ाइन साइड, बट जिस तरह का रोड मैप हमारे पास आजकल प्रोडक्ट डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइनर का है, हमारे पास वो रोड मैप शायद ग्राफिक डिज़ाइनर को लेके ना हो क्योंकि वो अवेयरनेस आई नहीं अभी तक, राइट. तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस के वाई लाइक हमारी जो मेजॉरिटी अगर आप बात करें डिज़ाइनर्स की, तो वो यही है कि जो दे स्टार्टेड आउट विद क्रिएटिव डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन एंड बिकॉज ऑफ मे बी द लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस दे स्विच टू द विजुअल डिज़ाइन साइड या द प्रोडक्ट डिज़ाइन साइड या यूआई यूएक्स वाली साइड पे. सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? फर्स्टली हर चीज जो है ना वो डिपेंड करती है एक इंसान के पैशन पे, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर राइट के जो बच्चे हैं वो इसी वजह से स्विच कर जाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं होता ग्राफिक डिजाइन के लिए. उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना या प्रॉब्लम आप जिसको कह सकते हैं वो ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है. मुझे भी तब नहीं थी, मुझे अब आके हुई है कि अगर मुझे अपना ग्राफिक डिजाइन में करियर परस्यू करना होता ना तो आई हैड दैट क्लियर रोड मैप विद मी. बट क्योंकि बच्चे अभी नए नए यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, दे डोंट नो द वर्ल्ड इज आउट देयर फॉर देम, ठीक है, उनको नहीं पता उन्होंने कहाँ जाना है क्या करना है. So again, awareness part is missing out a lot for them. And I have seen people who are good graphic designers and they have just started with, you know, base graphic designing, and now they are motion designers, brand designers, visual designers. So a graphic design is a very, very good field in itself, and in big marketing agencies. Like I have also worked in Ogilvy and in Ogilvy Pakistan as a graphic designer. That was one of the internships. And agar for example मैं उधर ही रहती, ठीक है, if I don't choose to switch in this particular digital tech field, so अगर मैं उधर ही रहती तो और वहीं पे मेहनत करती तो I could have, you know, gone from a graphic designer to a brand designer, then from a brand designer to a visual designer, then so on. So roadmap is still there. Kids need to map that out for themselves. अब ऐसा टाइम आ गया हुआ है, ऐसी टेक आ गई हुई है, ऐसी इंटरनेट इज फॉर यू एवरी टाइम अवेलेबल. इंसान को अपनी सेल्फ अवेयरनेस अब खुद करनी पड़ती है अगर उसके अंदर पैशन है. अगेन, पैशन takes you to self-awareness. If you have passion, you will get self-aware with that particular industry or with your particular journey. So that's need to be done, that the
आपके अंदर पैशन है तो यू कैन conquer anything and everything. Great. So since you said that passion will be probably the way to actually fulfill of knowing yourself या self awareness, but how do you discover the passion? ये भी एक बहुत बड़ा मसला है राइट हम आधे ज़्यादा को तो पता ही नहीं होता कि पैशन है सो लाइक हाउ डू यू टैकल दैट बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो बहुत ही वेग किस्म का क्वेश्चन है और हर बंदे के अपने एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि आपने पैशन किस तरह अपना मैप आउट करना है. पैशन आपका तब मैप आउट होता है जब आपके अंदर प्लानिंग की सेंस हो. ठीक है, अगर आपके अंदर प्लानिंग की सेंस है ना, वो आपके न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, दैट यू प्लान एवरीथिंग बिफोर डूइंग. बिकॉज आई डू दैट प्रैक्टिस एवरी डे. आई प्लान माई डे. ठीक है, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लेजीनेस की वजह से काफी चीजें नहीं हो पाती, बट एटलीस्ट आई प्लान. ठीक है, तो अगर आपके अंदर सेंस ऑफ प्लानिंग है ना, तो आपकी डेवलपमेंट भी हो जाती है. ठीक है, सही है. पैशन आपका तभी डेवलप और मैप आउट होता है जब आपके पास प्लानिंग है. अगर आपके पास प्लानिंग है कि फॉर एग्जांपल मुझे आने वाले 1 साल के अंदर एज अ ग्राफिक डिजाइनर टू सीनियर ग्राफिक डिजाइनर बनना है, दिस इज योर प्लानिंग. सो अगर आपकी ये प्लानिंग है ना, तो आपका पैशन भी उसके साथ ही to achieve that thing, your passion comes in. ठीक है, now the question is to how to find that you need to become a graphic designer, yeah, you want to become a graphic designer. That is something depends on every individual. अगर आपके पास कुछ certain interests हैं, ठीक है, कि अगर मेरा my younger brother he's in NCA and he's studying musicology. ठीक है, his journey was that he went to a certain competition of Free Fire, I believe. वहाँ पे he won like 8 लाख रुपया वो जीत गया in the age of 15. ठीक है, competition. So again, he was doing something, क्योंकि वो कुछ जा रहा. ठीक है, आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप अननोइंगली डिजाइन नहीं भी कर, बट आपको उस चीज में मजा आ रहा है, या यू हैव टू हैव दैट सेंस कि अच्छा मुझे ये चीज में मजा, तो वो करते करते प्लानिंग करते करते यू गेट इनटू योर पैशन. सो दैट्स वन थिंग. Again, it depends on the individual that वो क्या चीजों को perceive कर रहा है, but need to open your mind and eyes that what I'm going to do. Make sense. ठीक है, मेक सेंस के like how do you discover your passions that aligns with your interests, probably okay, like you actually Exactly. by hit and trying you know something के that's what you do, और ये करने में आपको मज़ा भी आता है, और ये काम आप शायद Exactly. पूरी ज़िंदगी के लिए like you can stick to it, then it aligns with your passion and then it aligns with your dreams probably, whatever you want to do with your life. Makes sense. Yes. Cool. सही है. अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. या अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आजकल के जो टीनेजर्स हैं, उनका ये रोना होता है कि हम बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं लग रहा हम क्या करें. अगर आप ट्राई नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हिट एंड ट्राई एज यू मेंशन, आपको कैसे पता लगेगा आपने क्या चीज करनी है. सो दैट्स वन थिंग, यू नीड टू कीप ट्राइंग. दैट्स वन ऑफ माय values in my work life and even my personal life, that you need to keep trying on every single thing, because if you don't do it, you will not find the way out to anything. Makes sense. सही है. Speaking of, by the way, doing something for the rest of their lives, there comes a point के opportunities की बात हम करते हैं, right? Opportunities में भी since जो market की direction है probably, उनको हर फन मौला चाहिए होता है for probably the price of an share. और since the COVID hit, post COVID, तो जितनी भी remote opportunities हैं, उनसे हमें पता चला कि लाइक बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाती है आपकी. आप लाइक वो जो आपका टाइम वेस्ट होता था ट्रांसपोर्टेशन में, वो नहीं होता. सो यू कैन एक्चुअली एफिशिएंटली यूटिलाइज योर टाइम, और साथ साथ में लाइक यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस द प्रोडक्टिविटी. वो जो आपका डीप वर्क वाली चीज़ होती है, उसको अचीव करना ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू लाइक वेस्ट योर एनर्जी इन द ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जो डेली की आपकी कन्वेंस होती है, आपने एक जगह से जा के दूसरी जगह जाना है, फिर वहाँ पे सेटल होना है, फिर वहाँ से सेम वापस आना है विद इन द ट्रैफिक एंड ऑल. तो रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली हंट करना लाइक ये एक बहुत मुश्किल टास्क है इट्सेल्फ. दूसरी चीज़ ये है लाइक फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव कि जो रिमोट रोल्स हैं दे कम अप विद देयर, जहाँ पे ज़ाहिर इनके फ़ायदे होते हैं वहीं पे उनके नुकसान भी होते हैं. कहीं पे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे यू हैव टू बी अवेलेबल लाइक इवन आफ्टर योर वर्क आवर्स एज वेल. तो लाइक ये सारी चीज़ों के अंदर सिंस यू आर इन द रिमोट अपॉर्चुनिटी करेंटली, सो फर्स्ट आई वुड लव टू नो कि लाइक हाउ डिड यू क्रैक, या हाउ कैन एनीबडी क्रैक दैट, एंड देन यू कैन लाइक put some light on कि like किस तरह के scenarios हैं, क्या do's don'ts हैं, क्या perks, like pros and cons and all. Okay. I'll just start with the mantra I just told you, that Yeah. keep trying. Yeah. Keep pushing. ठीक है. If you don't keep pushing, you will not find the opportunity for yourself. In 2025, I say to everyone that nothing is impossible. If you want something for yourself,
and if you keep trying for it, or if you keep pushing yourself for it, you will get that. Mhm. फर्स्ट थिंग इज दैट कि आजकल जो लोग कहते हैं कि हमें रिमोट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या हमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ठीक है, Mhm. हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, whether not in that way, whether they are not fit for that company, Mhm. whether they are designers how to represent themselves, ठीक Mhm. है. तो आपको अपने जो फ्लॉज हैं उनको मैप करना चाहिए और उनको बेटर करना चाहिए, तभी फिर आप एक पोजीशन पे जाके बैठते हो. Mhm. अगर आप अपने ही नटशेल में रहोगे तो आप कभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है. Mhm. Then, answering to your question that how to crack a remote opportunity, I cracked it by just trying. ठीक है. I was working in a USA based company that was also remote, but उससे पहले जब मैं on site काम कर रही थी सॉफ्टवेयर हाउसेस में सारा, so I was working on site, but again I had no time left for myself, ठीक है. प्लस मेरी लर्निंग भी रुक रही थी, माई पर्सनल लाइफ वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है, एंड ऑल द टाइम वॉज जस्ट गेटिंग आउट एंड ट्रैवलिंग, बीइंग देयर, बहुत ज्यादा हैसल हो जाता था, ठीक है. और सुबह के गए रात को, यू डोंट हैव टाइम लेफ्ट फॉर एनीथिंग, ठीक है. Then I thought कि यार we just, and then you get good money in remote opportunities. That's one of the aspect which no one talks about it, but it is true, ठीक है. अगर आपको देखो काम तो एक जगह है, if you're getting good money, that is one of the biggest motivation, ठीक है. So that was one of the reason that I needed good money, ठीक है. So I tried for looking, started looking for remote opportunities which were, giving salaries in PKR or even in USDs, but it should be a good salary for me, ठीक है, जो मेरे काम को, मेरी मेहनत को justify करे, ठीक है. So then I started looking on LinkedIn, ठीक है. I applied on, numerous number of jobs, और मैंने सिर्फ remote jobs पे apply किया, ठीक है. और because I needed one, so and then what I did was I used to message the recruiters directly. I used to message even the CEOs directly. My current job I cracked by messaging the CEO directly. I just gave him my introduction and he was like, okay, let's do an interview. There was no such openings as well. I gave the interview, ठीक है. Then for some reason probably they stopped hiring or whatever, ठीक है. तो उस दौरान मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी, ठीक है. I had two on my plate. So the current which I'm working on, they stopped actually hiring. They said me, okay, we are going to hire, like, you've passed everything and everything, but for some reason, internal operational reasons, they stopped hiring. After few months, I again approached them because I really liked this company script and their work culture, and I didn't know the work culture before, but few of my few of my connections knew it, and the CEOs were very, very unconventional. They're just like you and me. They have that mindset. So I wanted to work with someone जो मतलब के young generational के साथ चल सके. So what I did, I again messaged them after a few months जब job opening दोबारा हुई, मैंने CEO को again message किया, and he was like, okay, we have your interview, you have your passed your interview and everything is done, we won't take it again. आप मेरी direct hiring हो गई थी फिर. There was no such interview happening, it was just an introduction call. So that's what we do, that's how it's supposed to be, that you should keep pushing yourself. You should keep if अगर एक कंपनी में जॉब आई है तो उस कंपनी में आप जाके देखो कि उस जॉब, जैसे डिजाइनर की जॉब आई है तो उस डिजाइन डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, मैं उसको मैसेज करती हूँ. उसको हायरिंग कौन कर रहा है रिक्रूटर में, उसको भी मैसेज कर देती हूँ. इट जस्ट टेक 2 minutes to copy paste message to everyone. You just have to change the name. And I message the CEO, even I message every possible person who I think can help me getting this job. I message that person. तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, बट आपको मिल जाती है. ये ऐसी कोई बात नहीं है कि यू डोंट गेट द रिमोट जॉब. यू गेट द रिमोट जॉब. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी वेरी, वेरी मच out there on LinkedIn. You have to work on your self branding. You have to show yourself that you're not just a designer, you're someone who will bring in all the solutions for your company, or you're someone that if the company will not have you, they will be in downfall. So you should be that person. You should उनकी psychologically उनको ये चीज आप बताओ कि आप जो हो, आपकी कंपनी में अगर मैं आ जाती हूँ तो it will scale in a very good way. So that's how it works. You have to work on your self branding. You have to keep messaging the recruiters, the HRs, the people who is hiring, the managers, and आपको कहीं ना, अगर आप 100 जॉब्स पे अप्लाई करते हो ना, शायद आपको एक दो से जवाब आ ही जाता है. तो the mantra is to keep pushing and keep trying. And what was your second question? I forget it. It was like, ठीक है, like you searched a lot about the remote opportunity, and once you get it, the pros and cons probably. या द प्रोज एंड कॉन्स. ओके, अच्छा, अब आपको रिमोट अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, ठीक है. ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, कि ये कंपनी ठीक है भी या नहीं है. बट अगर एक कंपनी की अच्छी वेबसाइट है, ठीक है,
देखो मैं तो कंपनी की पूरी रिसर्च करती हूँ पर्सनली, ठीक है, हम्म, आई रिसर्च एवरीथिंग अबाउट द कंपनी इवन बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। हम्म, और जब मुझे उधर से कॉल आ जाती है फॉर द इंटरव्यू, आई डबल माई रिसर्च, जो मैंने पहले नहीं बस ऊपर ऊपर से की होती है, मैं एक डीप रिसर्च फिर करती हूँ। हु आर द सीईओज, who is working in the company, अगर वो उन जो वर्क कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स क्या है, what is the website, what is the LinkedIn page, how active they are. हम्म, So these things are आपके सामने एक बहुत बड़ा सबूत होते हैं उस कंपनी के डेवलपमेंट और स्केलेबिलिटी के लिए, या, ठीक है। तो ये चीजें आई बिलीव इनफ होती हैं टू अंडरस्टैंड दैट वेयर द कंपनी इज स्टैंडिंग राइट नाउ। हम्म, ये तो ट्रस्ट इश्यूज की बात हो गई ना। दूसरी ये चीज, एंड इफ यू कैन इवन गो टू द लिंक्डइन ऑफ दैट कंपनी, यू कैन सी हाउ मेनी मेंबर्स आर इन दिस कंपनी। If you see 100 plus members, obviously the 100 plus members are not going to be fake, हम्म, and their profiles are live working, ठीक है, 2-3 साल से कंपनी से कनेक्टेड है, तो इट इज अ स्टेबल कंपनी आई बिलीव। हम्म, सो एंड द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, उससे पहले मैं ना सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगी। प्रोज तो इसके यही हैं कि आपका सबसे बड़ी बात कोई खर्चा नहीं होता, हम्म, ठीक है। आपका ट्रैवल का कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। आपका कोई डिवाइसेस का कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। आपकी कोई वैसे, अब आप इफ आई गो समवेयर एवरी डे गेटिंग रेडी, यू हम्म, यू सेव योर क्लोथ्स, ठीक है, यू सेव योर टाइम एंड यू सेव गेटिंग रेडी, ठीक है, हम्म, जो कि लड़कियों का बहुत बड़ा होता है। सो दैट दोज आर ऑल द प्रोज कि आप एकदम से उठो और बस लैपटॉप खोलो बैठ जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास प्रोडक्टिविटी और लर्निंग का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है। हम्म, जो आप टाइम सेव कर रहे होते हो ट्रैवलिंग का एंड एवरीथिंग, वो आप एक अच्छे टाइम में लगा सकते हो, लाइक एक अच्छे काम में। यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली, यू कैन इवन यू डोंट आपकी फूड का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो बचता है, ठीक है, हम्म, बिकॉज घर में तो खाना बनता ही है, ठीक है। हम्म, तो तो आपकी ये है कि आपकी यू गिव टाइम टू योर फैमिली, यू कैन मैनेज स्टफ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। हम्म, प्लस जो ऑफ ऑन साइड जो होते हैं ना, माहौल बहुत डिफरेंट होता है, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट अगेन अगर आप अपने घर के इन्वायरमेंट में हो तो दैट्स गुड फॉर यू। जो कॉन्स है ना वो ये है कि अब इफ यू आर सिटिंग विद 10 लाइक माइंडेड पीपल, हम्म, यू विल एक्सचेंज अ लॉट हेल ऑफ नॉलेज, हम्म, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कॉन कि अगर मैं एक ऑफिस एनवायरमेंट में काम नहीं कर रही, ठीक है, हम्म, तो मेरा फोकस भी हट सकता है, ठीक है। मेरा काम करने का दिल नहीं भी कर सकता, ठीक है, हम्म, बिकॉज आई एम इन माई रूम एंड या, योर रूम इज योर कंफर्ट स्पेस, ठीक हम्म, है। सो वो आपको थोड़ा सा समटाइम्स बैक डाउन कर देती है, ठीक है। एंड आपको अगर जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं, दे टेल मी 10 थिंग्स, हम्म, ठीक है, तो आई एम एब्जॉर्बिंग दोज 10 थिंग्स इनटू माय ब्रेन। सो जो लर्निंग एस्पेक्ट है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो घर में फिर आपकी सेल्फ लर्निंग है, हम्म, ऑफिस में यू कैन लर्न एंड यू कैन ग्रास्प नॉलेज फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल एंड फ्रॉम एवरी इंडस्ट्री पर्सन। या, सो दैट्स वन थिंग के ऑफिस के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, रिमोट कल्चर के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो मेजर प्रोज एंड कॉन्स है वो यही है। द प्रोज आर दैट यू सेव टाइम, यू गिव टाइम टू योर फैमिली, यू सेव टाइम फॉर योर सेल्फ, यू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, यू सेव मनी एज वेल, ठीक है। एंड जो कॉन्स हैं वो यही है कि आप अपने जैसे लोगों से मिल नहीं सकते, इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हैपनिंग इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, यू हम्म, जस्ट सिटिंग स्ट्रेट 9 hours ऑन योर सीट, हम्म, you cannot walk out and say hi to some random guy. So हम्म, that's one thing जो miss out हो जाता है। Otherwise, it all depends on you. If the work is going good and in your favor and you're learning and आप packed over with clients and everything, फिर आपको इतना ये चीजें फील नहीं होती। अंडरस्टैंडेबल। जो चीज़ मैं ट्रस्ट इश्यूज़ की बात कर रहा था, दैट वाज फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड कि कहीं प्रोडक्टिविटी सेक्रीफाइस तो नहीं हो रही। क्या ये बंदा लाइक जितना भी टाइम है उसमें काम कर भी रहा है कि नहीं, कोई और काम तो नहीं कर रहा। कोई इस तरह की चीज़ें लाइक जो एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव से होती हैं कि लाइक जो मेरा रिसोर्स है, क्या वो स्टिल मेरा ही रिसोर्स है व्हेन इट कम्स टू द रिमोट। तो ये इस तरह की चीज़ें थी कि लाइक ये भी एक पर्सपेक्टिव है या एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये अपने साथ लेके आता है जो रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो लाइक इस पे लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ए प्रोजेक्ट है, ठीक है, आई नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इफ माई प्रोजेक्ट मैनेजर कम्स टू मी, ही आस्क्स मी इफ आई एम गेटिंग वर्क डन फ्रॉम समवन एल्स, हम्म, ऑब्वियसली आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम्म, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय साइड पे भी। Most of the companies have the now they have the tracking thing on the laptops and on the systems. They हम्म, see that what's the productivity level. Even the employees are not sitting idle, so what's the idle time and what's the productivity percentage for the whole day. And if the work is getting done in a very good way, मेरी कंपनी का तो यही ज्यादा है कि वो इन चीज़ों से ज़्यादा ना वो इस चीज़ों पे फोकस करती हैं कि अगर काम जो है वो ऑन टाइम हो रहा है, क्लाइंट्स आर हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, they don't mind me working even 6 hours 7 hours a day. हम्म, So the end goal is to just get the job done. That's the attitude what every company should have. हम्म, And I'm lucky in that way. But again एक employer जैसे it happens, इस तरह के cases आ जाते हैं कि एक for example developer ने join किया है,
and he's not working, he doesn't know the context, you know, the idle time is crossing 50-60%, तो obviously वो बहुत evident होता है कि the guy is not working, and policies फिर उसके लिए होती हैं, तो ये चीज़ें तो साथ साथ आती हैं, बट अगर आप मेहनत मेहनत कर रहे हो और वो नज़र आ रहा है तो फिर इतने ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज नहीं क्रिएट होते. बट माई क्वेश्चन इज़ कि सी देर इज़ अ टास्क जो कि शायद आपके स्टेक होल्डर्स को लगता हो कि बहुत बड़ा टास्क है, राइट? और अभी ये मैं लाइक जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये स्टेक होल्डर्स थिंक कि भाई ये बहुत बड़ा टास्क है, इसमें इसको कम से कम 1-2 दिन लग जाएंगे. ये सिनेरियोज होते हैं, इस तरह के होते हैं, ठीक है, और वन शुड बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट. फर्स्टली अगर देखो, इफ माय मैनेजर फॉर एग्जांपल हैज गिवन मी सम टास्क, ठीक है, एंड द डेडलाइन इज फॉर 2 days, बट मैंने वो 3 घंटे में कर दिया, ठीक है, ऑब्वियसली आई विल बी इम्प्रेसिंग माय मैनेजर बाय टेलिंग हिम दैट कि मैंने ये 3 घंटे में कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा ही फायदा इसमें, ठीक है, माय प्रोफाइल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ओके, कि अगर हमारे पास कल को बहुत टाइम कंस्ट्रेंट काम भी आता है तो निदा कैन गेट इट डन, ठीक है. तो इंसान को पहले तो ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चे इस तरह की बेवकूफियां कर देते हैं कि अब स्ट्रेच करो टाइम को, ठीक है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है. ये आपका खुद भी ईमान इस पर बड़ा डिपेंड है कि आपका क्या है, ठीक है. तो मेरी तो यही प्रैक्टिस होती है कि अगर मैं जल्दी कर दिया तो मैं उनको, बिकॉज आई नो, मैं भी ये चीज हमेशा कहती हूँ कि आई डोंट वर्क, आई इन्वेस्ट, ठीक है, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट योरसेल्फ इन द वर्क देन यू आर वेरी ट्रू टू योर वर्क. अगर आप अपने काम के साथ ट्रू नहीं हो, ठीक है, तो वन और अदर डे आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है. आज तो आप ये 4 घंटों को 20 घंटे में स्ट्रेच करके निकल जाओगे, ठीक है, लेकिन कल को आपकी ही सेल्फ डेवलपमेंट पे बात आती है, ठीक है, और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, और फिर आप कल को जब आपके पास शॉर्ट टाइम कंस्ट्रेंट आता है तब आप परेशान हो जाते हो कि अब हम क्या करें. सो दैट इज वन थिंग कि हमें वी शुड बी ट्रू टू आवर वर्क, ठीक है, बिकॉज अगर वी आर ट्रू टू आवर वर्क वी विल एक्सेल इन इट, ठीक है. और एम्प्लॉयज को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर काम 2 दिन का और मैं 3 घंटे में करके दे रहा हूँ तो दैट इज माई यू नो प्लस पॉइंट. ये मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग पे बात है कि ओके दिस गाय और दिस गर्ल इज यू नो वेरी मच हार्ड वर्किंग, उसने इस काम को सीरियसली लिया और मेहनत करके 3 घंटे में करके दिया, ठीक है. तो एक तो ये चीज समझनी चाहिए कि मेरा खुद का फायदा है इस चीज में, ठीक है. दूसरी चीज ये है कि अगर हमें ये चीज ऑब्वियसली अगर हम देख रहे हैं एज अ कंपनी के जो माई डिजाइनर has get the work done in 3 hours but he's not for example telling me, ठीक है, और मैंने ये चीज मैप आउट कर लिया है, तो what we do is we have inbuilt policies, we have all the you know right channels to convey this message, and again obviously these things result in very bad for the employers. Understandable है, सही है, impressive. Now we think, probably I think कि this conversation is now like बहुत ज़्यादा सीरियस तो हो ही रही है, बट इसमें एक और चीज़ जो मुझे बड़ी लाइक जो कि लीड कर सकती है इसको, वो ये है कि लाइक जिस तरह आपने कहा कि लाइक 100 चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, राइट? व्हेन यू आर इन द रिमोट जॉब तो लाइक थिंग्स आर स्टिल मैनेजेबल, बट ओवरऑल जॉब के साथ चीज़ें मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. फैमिलीज, इवन पैशन प्रोजेक्ट्स, या जो भी आपकी सेल्फ लर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, राइट? सो लाइक हाउ डू यू मैनेज the community work जैसे Friends of Figma है, plus your job plus your family, so like how do you manage all of this? अगेन ये ऑब्वियसली मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप लाइफ के किसी भी पॉइंट में हो. इंसान को ये लगता है कि चीजें इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है. इफ यू अगर आपने अपनी टांग 3-4 जगह फंसाई हुई है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजें मैनेज करना. बट अगेन अगर इफ यू हैव दैट पैशन यू नो फॉर योर वर्क, आप ये चीजें कर लेते हो, ठीक है. फ्रेंड्स ऑफ फिग्मा जो है वो इस तरह से इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, ठीक है, इट्स माई चॉइस, एंड व्हेन इट्स योर ओन चॉइस आप वो चीज कर लेते हो. इट इज नॉट अ लाइबिलिटी. लाइक जैसे कि जॉब है, समटाइम्स लोग उसको लाइबिलिटी समझ के करते हैं कि वी नीड द मनी, इट इज अ सर्वाइवल थिंग, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी बन जाती है. मेरा ये कहना है कि अगर आप शौक से काम करते हो ना तो वो कभी भी लाइबिलिटी नहीं बनती, और वो काम आपका जल्दी भी हो जाता है, आपका टाइम भी जल्दी गुजर जाता है, ठीक है, एंड यू एंजॉय द वर्क डूइंग. सो अगेन आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, दैट मैनेजमेंट मेरी एक पर्सनल आदत है, हैबिट है, और ये मैं सबको कहूंगी कि वो इसी तरह की हैबिट डेवलप करें कि आप अपनी चीजें ना प्लान करके चलें, ठीक है. एंड यू शुड बी अ मल्टीटास्कर. अगर आप मल्टीटास्कर नहीं है ना तो आप कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है. बीइंग अ मल्टीटास्कर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो हमारे इवेंट्स होते हैं ना वो हम अलाइन ही, अगर हम कोर मैनेजमेंट की बात करें, वो हम अलाइन ही वीकेंड्स पे करते हैं, सो दैट एवरीवन इज अवेलेबल, वी आर अवेलेबल, आवर जॉब्स आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड आउट ऑफ इट, ठीक है. फिर उसके बाद अगर मैंने 9 घंटे की फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट देनी है, ठीक है, अपने काम पे, तो उस 9 पूरे दिन में यू हैव लाइक मोर देन 9 hours, यू नो. आप अपना डे इस तरह से प्लान करो कि आप एक घंटा 2 घंटे आप अपनी कम्युनिटी को दे दो, ठीक है, या दिन में एक आप मीटिंग कर लो अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, ठीक है. दैट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम. इफ यू डोंट नो हाउ टू, फर्स्ट थिंग इज द मल्टीटास्किंग, सेकंड थिंग इज द टाइम. इफ यू डोंट नो हाउ टू टाइम, आप 3 घंटे बैठ के रील्स भी स्क्रॉल कर सकते हो एंड यू कैन वेस्ट योर टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट इज वन स्किल दैट यू शुड नो हाउ टू डू इट.
Second is multitasking. If you know these two skills, time management and multitasking, you can manage every single thing, whether it's your family, it's your community work, it's your job. So time management and multitasking, these are two, I would say, recipes to that.